जी कैच नहीं छूटते, बनो तो बेस्ट फील्डर्स हैं। तो वाइड चली गई गेंद। ट्रेवर बेलिस तैयार हैं, थोड़ा सा उनके पास चलते हैं along the sidelines. Trevor Bayliss is down there watching proceedings. You'd have seen that drop catch. How are you doing, first of all okay? I was going all right until I saw that. You were? Okay, let's talk about David Warner and the decision to leave him out and the difficulty of that with so many runs that he's scored for your side over the years. Yeah, obviously a difficult decision, big decision. But we wanted to try and change the makeup of the team and try and help our bowlers out with a few extra overs from another bowler. We've gone with Nabi in this game. Someone like Jason Holder in that middle order, will help out our pace bowling as well. But yeah, look, a big decision. But he's a trooper. He's out there running around doing the 12th man duties as you would expect. That sounds, Trevor, like you're planning for a few games, not just the one where he misses out, reflects and comes back. Well, with everyone, we would like to stick with the same team for a lot of games if we could. That means obviously playing well and winning a few games in a row, but giving some of the guys an opportunity and not just discarding them after one or two bad games. Yeah, fair enough. And as this one goes, what's your thinking? Yeah, look, a steady start. It's obviously a very good wicket and two very good batters at the crease there. It would have been nice to pick up Sanju there and a close call with Butler early on there. But we get like always, you get two wickets, and especially if it's these two guys, it's a different look to the match. You remove a peg in order to try and move things around, and you're trying to plug holes. Is there a particular area you feel has let you down in the season? Look, it's very difficult because the first 5 games we played was played on a very difficult Chennai wicket, which didn't allow our batters to get into the greatest of form. We've come here and it's a decent wicket. We've probably struggled to actually come the other way and bat on a better wicket. I think it's the confidence that our guys haven't got after the way we batted, chasing those runs in Chennai. So it's probably more confidence than anything. Some of the guys spend a little bit of time there. Hopefully they can spend some time here in this match. We certainly showed some signs in the last game with some of the with Kedar and obviously Kane Williamson scoring runs and Pandy. So hopefully those 2 or 3 guys can bat well today, plus a few others, and we give ourselves a good chance of winning, batting second. Okay, all the best. Thanks for your time, Trev. Thank you. Cheers. राशिद खान, ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि 11वां ओवर राशिद खान का चौथा। अब यहां मैं उम्मीद करूंगा संजू सैमसन से, ये रनआउट का चांस था। अच्छा थ्रो, केदार, कहानी खत्म थी। और इस बार भी पार्थिव गेंदबाज जा नहीं रहे। आजकल आउट ऑफ फैशन है कि स्टंप्स पे जाना मना है। लग तो बिल्कुल रहा है। देखो केदार भी वहां पे आपको उनको एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए स्टंप पे जाने की। एक बार फिर हवा में गेंद मारी है। इस बार भी 1 बाउंस चौका तो मिल गया है, पर आग से खेल रहे हैं जनाब, हाथ बचा के रखिएगा, जल ना जाए सैमसन। आज सोच कर आए कि अटैकिंग खेलेंगे, फ्रीली खेलेंगे। जो कप्तानी का बोझ लेके बल्लेबाजी कर रहे थे वैसे नहीं कर रहे। फिर भी वो उनकी जो गेम है, जो परसेंटेज क्रिकेट जो है वो नहीं खेलते, उस तरह से ही आज खेल रहे हैं। बड़े चांस ले रहे हैं। एक देखना होगा कि राशिद अपनी आखिरी ओवर डाल रहे हैं तो क्या सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही चाह रहा था कि आप आइडेंटिफाई करिए थ्रेट को। इस साहस और दुस्साहस में वो अंतर होता कितना है। यहाँ अगर आप आउट हो गए, पिछले ओवर में आपको एक जीवन दान मिला है, तो फिर तो खेल सारा बदल जाएगा। वो फैन बॉल घर पे बैठिए इसी प्रकार से जैसे हमारे ये एंजॉय कर रहे हैं। वो बीच में डांस अच्छा लगा मुझे उनका। ये ऐसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं अगर आप खड़े रहेंगे वहां पर तो यहाँ पे अगर ये 3 बॉल खेल जाते हैं तो आकाश 5वें बॉलर की 3 ओवर बाकी है।
और वो बहुत बड़ा होगा क्योंकि विजय शंकर या फिर ऑफ स्पिनर नाबी को गेंदबाजी करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे केन विलियमसन। इसीलिए मैं ये चाहता था कि जेसन होल्डर खेले ताकि बीच में गेंदबाजी भी कर सके या नई ओवर से भी गेंदबाजी कर सके, लेकिन रणनीति अलग। 2020 में राशिद खान ने एक भी ओवर पावर प्ले में नहीं डाला था और यहां पर आज 2 डाल दिए और इस सीजन में भी अभी तक नहीं डाला था। सोच यहां पर केन विलियमसन की वही है कि संजू सैमसन और जॉस बटलर खेल रहे हैं, उनको आउट करे, वो पार्टनरशिप ब्रेक करे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। इस प्रकार विकेट इन्होंने चटकाई थी, 3 चटकाई थी पिछले मुकाबले में, सामने यहाँ पे आउट किया। चलिए राशिद की थ्रेड यहाँ हुई समाप्त। 4 ओवर में उन्होंने दिए 24 रन, 24 गेंदे 24 रन, 11 के बाद 86 पर 1 हारा। जॉस बटलर 2 रन मिल जाएंगे। ऐसी फीलिंग आ रही है पार्थिव की 1 विकेट आ सकता है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन लग रहा है मुझे कि यहाँ बटलर ना ये बल्ला फेंक रहे हैं बहुत जोर से। बिल्कुल, राशिद खान सनराइजर्स के सबसे बड़े विकेट टेकर है, लेकिन जो आईपीएल के सबसे बड़े विकेट टेकर है वो आकाश चोपड़ा। इसलिए अगर आपने बोला है कि विकेट आ सकती है तो चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रिय पार्थिव, हम बिग स्टोरी पे थोड़ा फोकस करेंगे अब। बल्ला घुमा रहे हैं और बल्ले पे गेंद चढ़ नहीं रही है और बड़ी कहानी यही है कि राशिद खान, देखिए ये टैलेंट की खान, प्ले में गेंदबाजी, कप्तान बदला, रणनीति बदली। यहां यशस्वी जायसवाल को अंततः आउट भी किया था, जॉस बटलर भी आउट हो ही गए थे अगर खराब नहीं किया होता अपना डीआरएस। बिल्कुल, और आज उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी करे, एक चांस बना भी था, लेकिन यहां पर पहली बार, जो मैं पहले पिछले ओवर में बोल चुका कि 2020 में एक भी ओवर पावर प्ले में नहीं किया, यहां पर रणनीति चेंज सनराइजर्स की। आज 4 ओवर उन्होंने खत्म कर दिए और चल रहा है अभी तक खाली 12वां ओवर। तो एक अटैकिंग सोच, लेकिन यहां पर और ज्यादा अटैकिंग हो गई ऐसा लग रहा है। और अब जो विजय शंकर की 1 ही ओवर हुई है, 3 ओवर मोहम्मद नबी की ओवर्स बाकी है। अगला करा के नबी से चांस ले लेना चाहिए, बहुत लेट हो जाएगी नहीं तो। और अगर यहाँ विकेट मिल जाए तो फिर तो 100% आप नबी से आप गेंदबाजी करा के ओवर निकलवाइए, क्योंकि आने वाला बल्लेबाज लेफ्टी हो सकता है। और यहाँ पे सोच भी वही लग रही है कि विकेट जाने का देर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि अगर विकेट जाएगी तो नबी को या विजय शंकर को डलवाएंगे। लेकिन इस पिच पे अगर गेंद एक बार पुरानी हो जाती है और इस छोटे ग्राउंड में फिंगर स्पिनर का कितना बड़ा रोल हो सकता है वो देखने जैसा होगा। जॉस बटलर एक बार फिर, खलील खलबली मचा सकते हैं। यहां तो खलबली जॉस ने मचाई है, एकदम कीपर के सर के ऊपर से शॉट मारना कहते हैं बहुत मुश्किल है, ये आसानी से करके दिखाते हैं। बिल्कुल आसानी से करके दिखाते हैं। 360 डिग्री बैट्समैन की अमूमन हम बात कर, वी जो सामने होता है उसमें तो फिर भी आपको, हमने देखा धोनी ने कल फील्डर खड़ा किया हुआ था जो बिल्कुल सामने पोलार्ड के लिए, कीपर के पीछे मैंने आज तक किसी को नहीं देखा खड़े हुए। तो पीछे वाला वी जो है वो ज्यादा सुरक्षित है अगर आपका नाम जॉस बटलर है या फिर एबी डिविलियर्स है, विंडर डीकॉक है। 36 गेंदे 42 नाबाद ऑन द स्टंप्स। बाहर की गेंद थी, 12 ओवर यहां हुए समाप्त, 94 पर 1। संदीप शर्मा 2 ओवर में 9 रन दिए, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। अब मुझे लगता है इरफान अब थोड़ा सा ये विस्फोट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली के मैदान में आपको बड़ा स्कोर पोस्ट करना जरूरी है। अभी तक मोहम्मद नबी ने गेंदबाजी नहीं की है, विजय शंकर ने 1 ओवर किया, उसमें से उन्होंने 18 रन दिए हैं। तो अब ये साझेदारी भी 78 रनों की होगी, तो अब मुझे लग रहा है कुछ बड़ी बड़ी हिट्स नजर आने हैं। बिल्कुल, एक अच्छी साझेदारी परख के आई है। इसी वजह से अपने रिसोर्सेज जो है केन विलियमसन ने जल्दी खत्म कर दिए। राशिद खान को वहां पे खत्म करवाया, खलील आए थे 1 और ओवर डालने के लिए। संदीप शर्मा 13वीं ओवर चल रही है लेकिन उनको भी लेके आई, अच्छे गेंदबाज है, इनके पास वेरिएशन है, यॉर्कर बढ़िया डालते हैं, स्प्लिट फिंगर